Dear friends, let us understand marketing management. That is, what is market? Everybody knows. But when we have to write in the exams, we are not clear about what we have to write over there in the marketing subject. We are very clear about market, marketing, marketers, and marketing management in our mind. But while writing an exam, we are not clear about the concept of marketing. Now I am going to take you to the slow in a very brief mode to the marketing subject. I hope all of you are will become clear about the concept and will get proper notes for writing your exam papers. Let us start with market and marketing. Now, marketing is related to customer, it is related to innovation, it is related to advertising, solution of any problem, concept which are new to the people, branding of any new product, strategy for marketing a product, opportunity to the market to be explored. Research is done while creating any object or any product. हम सब ने ये देखा होगा कि एक कस्टमर के पास एक मार्केटिंग मैनेजर आता है और अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करता है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता है. बट वी विल बी वेरी सरप्राइज व्हेन वी केम across this blower, when we came across a vacuum cleaner, when we came across mobiles. These are new innovations in the market which have came along with them with solution. A concept has been worked upon. A concept was there, a brand name is associated, that is LG, Samsung, and many others. The strategy is made to sell the product. It is sell through door to door selling, or it is through the personal contacts, or it is through mass marketing. These all the terms we will discuss later on. An opportunity to the marketing to explore in this market. These are all the things which are related to innovation, right? And a lot of research is done while creating a product. You all must be very surprised with the term called mineral water. Mineral water, a pot in a pet bottle, where people are carrying along with them, and they can purchase water from anywhere. They don't have to go to the hand pumps or to the rivers or pond. They don't have to search for rivers or ponds. These all have came along with the research. A new innovation has been there. Advertising of mineral water through Bisleri and many other byproducts. Many other competitors are there, and the solution was there to buy a water wherever you can, from a bus stand, from the railway station, and on in airplanes. These are having a different concept with them. I hope I am clear with. If you have any doubts, you can give your it the mention in the comment box. We are going to discuss in this chapter the marketing. What is marketing? That is definition, concept of marketing. What are the four P's associated with marketing, and marketing techniques, and importance of marketing in our life. Marketing. मार्केटिंग यू हैव केम अक्रॉस द वर्ड सेलिंग. आपने देखा होगा बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे एक कंघी बेचने वाला आपके पास जरूर आता है, या फिर पेन बेचने वाला. आपके पास जितने भी पेन हो तभी वो कहते हैं 10 रुपए के 3 पेन ले लो, या फिर एक कंघी ले लो. अगर आप अपने लिए नहीं तो अपने रिश्तेदारों के लिए एक कंघी गिफ्ट कर दीजिएगा. अगर किसी के सिर पे बाल नहीं है तो उसे भी कह देते हैं वो लोग कि आप अपनी पीठ ही खुजला लीजिएगा, या फिर किसी और को कंघी ऑफर कर दीजिएगा. तो ये क्या है? सेलिंग. सेलिंग अ प्रोडक्ट वेयर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. आपने आलू प्याज ने देखा होगा. Potatoes and onions are being sold whether it is required or not. People used to store them in their kitchen. Again, but in marketing is different from selling. How? It deal with identifying and meeting human needs. एक इंसान की ज़रूरतों को समझना और उसके थ्रू अपनी प्रॉफिट्स को जनरेट करना. फॉर एग्जाम्पल,
आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि लोग अपना किचन में पॉटेड वाटर रखते थे, एक मटके में पानी रखते थे, स्टोर करते थे। लेटर ऑन एक फिल्टर्स आने शुरू हुए, उसके बाद एक्वागार्ड्स आने शुरू हुए। तो ये सब क्या है, हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स, एक इनोवेशन के थ्रू हमने मार्केटिंग करी अपनी प्रोडक्ट्स की, और लोगों तक उस न्यू मेथड्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचा। तो ये क्या है, हमने उनके भी प्रॉफिट बताया कि आपका पानी यहाँ पर फिल्टर होकर आएगा, इसके अंदर से बहुत सारे मिनरल्स जो हैं आपको आपकी हेल्थ के लिए खराब हैं वो निकाल दिए जाएंगे, और आपको वो प्यूरिफाई होकर आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्यूरिफाइड वाटर, प्योरेट, many things you have came across. Now, marketing management, it is an art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये एक आर्ट है, ठीक है, और एक साइंस इसमें रिलेटेड है। ये अकेले नहीं है, ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से डेफिनेशन बनाई गई है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट कौन है यहाँ पर, एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही कस्टमर्स हैं आप। एंड इसमें क्या है कि कस्टमर्स को हमने, नंबर ऑफ कस्टमर्स हमने ग्रो करने हैं बाय डिलीवरिंग काइंड का कस्टमर वैल्यू टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हमने उसको क्या है, डिलीवर करना है वैल्यूज को। हमारी मार्केटिंग होती किस किस चीज की है, आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हम डेली यूज में ले रहे हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर अदरवाइज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए। सर्विसेज क्या है, इंश्योरेंस, हेल्थ, बैंकिंग सर्विसेज, ये हमने नॉर्मली हमें मालूम है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हमारे इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, properties, organization, information, and ideas. These are also marketed through different channels, through different organizations. गुड्स क्या होते हैं हमारे ड्यू, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। सर्विसेज क्या है, हमारी होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारे मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री। आपने अभी लेटेस्ट पेंडेमिक के थ्रू देखा होगा हमारे हॉस्पिटल्स में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसी के अलावा आपकी हो गई होटल इंडस्ट्री, इसी के साथ हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री, हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द सर्विसेज। ठीक, राइट। हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं इवेंट्स। इवेंट्स आपने देखा होगा फेयर्स एंड ट्रेड्स, ट्रेड फेयर्स या फिर हमारे फेयर्स, नॉर्मल फेयर्स जो होते हैं जिसमें कि डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं हमारी। तो ये यहाँ पर हमारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। लेटर ऑन कम एक्सपीरियंसेस। हमारे एडवर्टीजमेंट्स में आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसके प्रोडक्ट आप खरीदिए। फॉर एग्जांपल डाबर, डाबर का च्यवनप्राश, आपने इसकी ऐड देखी होगी बहुत बार। इसके बाद आ जाती है हमारी हॉर्लिक्स की ऐड, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और और कोलगेट की ऐड, इतने सालों से दांत हमारे चमका रहा है, आगे भी चमकाता रहेगा। देन कम पर्सन्स, कौन से ब्रांड एम्बेसडर इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी हमारे मार्केट मैनेज करते हैं। ठीक है, वो भी हमारे प्रोडक्ट को, ब्रांड को एक नाम नाम दे देते हैं, एसोसिएशन के साथ ही वो बन जाता है उनके साथ कि ये इन्होंने ये बोला है तो करना ही पड़ेगा। जैसे पोलियो के एड में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, राइट। देन प्लेसेस, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता। आपने आगरा की ऐड देखी होगी, गुजरात की ऐड देखी होगी, आपने केरला की ऐड देखी होगी, JNK की ऐड देखी होगी, जहाँ पर डल लेक में डल लेक के में मेंशन होता है। तो ये सब क्या है, हमारे प्लेसेस की एडवर्टाइजमेंट्स। देन प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रियल एस्टेट में DHL हो गए, एंसल्स हो गए, TDI हो गई, या फिर स्मॉल प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, जो अपना एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये फ्लैट्स अवेलेबल हैं, या फिर ये अपना विलास अवेलेबल हैं।
Then came our organizations. Organizations used to market the do the marketing, that टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये अपने प्रोडक्ट्स के, हिंदुस्तान लीवर हो गया, ये बताते हैं कि हमारे पास कितने वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. देन केम आर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री. थ्रू आप जो आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, या फिर अपना मार्केटिंग रिसर्च जर्नल्स में देखते हो, न्यूज़पेपर्स में आ जाता है. ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस. मैगजीन्स हो गई. देन केम आर आइडियाज. तो आइडियाज क्या है, ये अपना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, या फिर अपना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, डिफरेंट उसमें डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आपसे आइडियाज मांगते हैं, while creating an advertisement, while creating a new product, while creating different things. These all are doing their own. These all things are marketed in our market. I hope you are clear with this. Then who market our products? That is our marketers. They used to create a demand. This demand is of 8 types: negative demand, non-existent demand, latent demand, declining demand, irregular demand, full demand, overfull demand, and unwholesome demand. These are the different 8 types of demands. We are going to discuss these in now. And negative demand. What is negative demand? Insurance. We don't want it. Don't want to insure our bikes. We don't want to insure our motor vehicles ourselves, or do not want to buy health insurance, because this money is not going to come back. But as per the Motor Vehicle Act, insurance is compulsory. We have to purchase it. Health insurance, अगर organization provide कर रही है तो it's okay, otherwise we are not going to pay for it. अगर पापा ने या मम्मा ने करवा दी है इंश्योरेंस तो हम प्रीमियम पे कर देंगे, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, बिकॉज इट इज नॉट माई प्रायोरिटी. आई नीड द मनी राइट नाउ. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माई मनी. आई डोंट वांट टू ब्लॉक माई मनी. This is negative demand. Now come second is non-existent demand. That is products and services do not know and uninterested. फॉर एग्जाम्पल आप एक रूरल एरिया में चले जाइए, वहां पर टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हो रही है, दे डू नॉट वांट टू नो मोर अबाउट इट. दे आर वेरी बिजी विद देयर नॉर्मल लाइफ. They do not need tabs. They do not need laptops. They do not need high tech lifts, or many other things which are related to the latest techniques. Then come latent demand. Latent demand, which is uh, required, but we do not require it right now. We will realize the need later on. For example, people with having a keypad phones during pandemic, when classes are going online, people might have understood the need of mobile phones that are of latest smartphones that are of the latest techniques, or tabs, or computers at home, or laptops at home. Declining demand. Declining demand is our old fashioned phones, that is Nokia 5, the 3310, Nokia 1500. These are the old phones that are declining, that are not required right now. Right? You can कॉल ऑन. आप इस फोन पे फोन तो कर सकते हो, कॉल तो कर सकते हो, लेकिन आप इस पे वीडियो कॉल नहीं कर सकते. ठीक है, आप इस पे अपनी क्लासेस नहीं लगा सकते. तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी डिमांड डिक्लाइन हो रही है. इरेगुलर डिमांड है कि बरसात में आपको छाते की याद आती है, अगर या फिर बहुत ज्यादा बाहर धूप है तब आपको छाते की याद आएगी, अदरवाइज आपको इसकी याद नहीं आएगी. तो ये क्या है, इसी तरह के प्रोडक्ट्स. अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम है तो अब आपको मेडिसिन की याद आएगी, अदरवाइज इसकी याद नहीं आती, या आपको मेडिसिन भी चाहिए. देन अनहोलसम डिमांड, प्रोडक्ट्स दैट हैव bad effect on our health, but people are used to these products, therefore they need this product, and this demand is unwholesome. Then come full demand. Medicines during pandemic, you might have understood the need of remedies, of these antibiotics which are required, steroids or oxygen cylinders, which were on full demand during peak in the during the corona.
corona, the second wave. And then come last are over full demand. Gold prices are always going up, petrol prices are also going up, that is our over full demand. These are the products which are high in demand and then supply. The goल्ड उतना ही है अपना इन धरती में, उसको आप निकाल के जैसे मर्जी यूज कर लीजिए, उसकी डिमांड आप अपने घर में जितना मर्जी स्टोर कर लीजिए, आपको लगेगा फिर भी और खरीदना है, आपको फेस्टिवल्स पे या फिर अदरवाइज भी इसको जरूर खरीदना है। दिस इज ओवर फुल डिमांड, इसके रेट्स कभी नीचे नहीं जाते, ऊपर ही जाते हैं। दीज आर द डिफरेंट 8 टाइप्स ऑफ डिमांड्स इन विच आर बीइंग अंडरस्टूड बाय द मार्केटर्स वाइल सेलिंग अ प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज मार्केट? ये आपको छोटी सी एक इमेज दिखाई है, आपने देखी होगी ये आपकी ग्रोसरी, ग्रीन ग्रोसरी शॉप में। तो ये अपना क्या है? मार्केट। यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स मिल रही हैं, आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर and seller can come to in contact with each other directly or indirectly. It is a place or region in which buyer are in free competition with one another. आप अगर कभी मंडी गए हो, सब्जी मंडी, तो आपने वहां पर देखा होगा कि बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं और एक सेम रेट भी दे रहे होते हैं। उनकी क्वालिटी, उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है सब्जी की, उसके बेसिस पे आप वहां से सब्जी लेते हैं और अपना घर पे आते हैं। आप उसके बदले में उसको पैसे देते हैं, दैट इज अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ मनी। These are the small thing which I've made try to made you understand the money is revolving in the market थ्रू डिफरेंट चैनल्स। दैट इज मैन्युफैक्चर मार्केट्स करता है, उसके बाद इंटरमीडिएटरी के पास आता है, या फिर रिसोर्स मार्केट्स के पास जाता है, उधर से ये कंज्यूमर के पास आता है। और इन थ्रू थ्रू डिफरेंट चैनल्स गवर्नमेंट अपने टैक्सेस अपने सब लेती है, और जीएसटी हो गया या फिर वैट हो गया, तो उस और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब कस्टमर के पास आता है वो उस प्रोडक्ट के प्राइजेस में ये सब वैट और सर्विस जीएसटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Now there are different marketing concepts, that is production concept, selling concept, product concept, marketing concept and societal marketing concept. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है और उसको मार्केट में लाना है। फॉर एग्जांपल उसकी और उसकी डिमांड हमेशा फुल रहती है, दैट इज अपना अपना होल सीरियल ग्रेन्स हो गए, यहाँ पर हमारी कॉटन हो गया, इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर हमारे कॉटन हो गया, या फिर हमारे ये हमारे एम्फोसिस इस पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सेकंड हो जाता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या आ जाता है? हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके ऊपर एम्फोसिस रहता है कि उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी परफॉर्मेंस हो गई, या फिर उसके फीचर्स हो गए। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आटा हो गया, हमारी मैदा हो गया, ब्रेड हो गई, या फिर हमारे बाकी सारे बाय प्रोडक्ट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए। तो ये क्या है? हमारे बाय प्रोडक्ट्स ऑफ, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर हमारा चलता है कि हम प्रोडक्ट या मार्केट में लेकर आ रहे हैं। देन आ जाता है हमारा सेलिंग कंसेप्ट, एम्फोसिस ऑन प्रमोशन टू प्रमोशनल एफर्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट, कि आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचना ही बेचना है। यहाँ पर क्या आगे हमारे अब ब्रांड नेम्स आ जाते हैं एसोसिएट होकर, कि आप ब्रिटेनिया की ब्रेड ले रहे हो कि किट्टी की ब्रेड ले रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारी वैरायटीज है मार्केट में, तो आप कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हो। फॉर एग्जांपल गाड़ियों, कार्स में आप देख लीजिए, अब सेम फीचर्स हैं, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसकी मॉडल में या फिर उसकी कलर में, जिससे कि आपको वो प्रोडक्ट क्या है मार्केट में जब आता है तो उसके प्रमोशनल एफर्ट्स जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि ब्रांड क्या एसोसिएटेड है। Then comes our marketing concept. Identifying the needs of customers and satisfying is better than competitors. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मार्केटिंग पर्सोनल जो है वो आपको बताता है कि आपकी नीड क्या है, और आपको आपकी कौन सी नीड ये सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर ए लग्जरी कार,
या फिर आप कम्पैक्ट कार। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके कस्टमर, आपको जो सेल्स सेलिंग मार्केटिंग मैनेजर है, वो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट पिच करता है और आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अ सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। वहां पर कस्टमर के वेलफेयर के ऊपर और उसके सेटिस्फेक्शन के ऊपर एम्फोसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स, या फिर आपने देखा होगा कोविड की वैक्सीन, आपने बहुत सारी वैक्सीनेशन करवा रखी होगी। HIV के लिए भी, H1B1 के लिए भी करवा रखी होगी। तो ये क्या है, हेपेटाइटिस के लिए जो ये सब क्या है, डिपेंड हमारी क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कि आपने ये करवा रखा है। आपके इंश्योरेंस कितनी है, और इंश्योरेंस कितनी क्यों है और क्या नहीं है, कौन कौन सी कंपनी से है, और आपके क्लेम सेटलमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये क्या है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कि आपको कौन सी कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी बच्चे बाहर गए हैं फॉरेन में तो वहां पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिखाया। कंपनीज ने, कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था कुछ वैक्सीनेशंस को। तो ये क्या है, हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, वहां पर हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। देन कम्स आर मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या है, हमारे 4 P's होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी एनी प्रोडक्ट। कहाँ पे आप, वो कौन सा प्रोडक्ट आप कौन सी कितने प्राइस पे कौन सी जगह पे और किस चैनल के थ्रू बेच रहे हो। दिस इज नेक्स्ट इज आर प्रोडक्ट। 4 P's के हम मार्केटिंग मिक्स में दोबारा पढ़ेंगे। मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, हमारे फंक्शंस क्या है इस प्रोडक्ट के, फीचर्स क्या है, अपीयरेंस कैसी है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, पैकेजिंग कैसी है उसकी, कौन सा ब्रांड एसोसिएटेड है, कितनी वारंटी है और क्या सर्विस उसके साथ एसोसिएटेड है। देन का हमारा प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का, डिस्काउंट्स क्या अवेलेबल हैं, अलाउंसेस क्या है, फाइनेंसिंग है कि नहीं अवेलेबल, देन लीजिंग ऑप्शंस हैं कि नहीं है। प्लेस, चैनल मेंबर्स कौन होगा, चैनल मोटिवेशंस क्या होंगी, मार्केटिंग कवरेज कहाँ कहाँ पर होगी, लोकेशंस क्या होंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, सर्विस लेवल्स क्या होंगे। देन कम्स आर प्रमोशन, कौन से चैनल के थ्रू इसको प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू। देन पर्सनल सेलिंग, इसमें पर्सनल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है। देन पब्लिक रिलेशंस है, मैसेज क्या है इसमें, मीडिया क्या है और बजट कितना है। देन कम्स आवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और जहाँ सर्विस ऑफर कर रही है, तो उस के क्या प्राइजेस होंगे और उसमें कौन सा चैनल कम्युनिकेशन मिक्स का हम यूज करेंगे और टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 C's जो है वो यूज होते हैं। दैट इज व्हाट सोल्यूशन आर वी गोइंग टू गिव टू आवर कस्टमर, क्या कॉस्ट टू द कस्टमर पड़ेगी, कन्वीनियंस टू द कस्टमर क्या होगा इसमें, और कम्युनिकेशन चैनल कौन सा यूज किया जाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल के लिए आ जाते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। देन कम पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो ये डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन मिक्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देन फैक्टर्स इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केट इन्वायरमेंट को में बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दैट इज़ अ कंपनी कौन सी है हमारी, प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है, PSU है, क्या है ये। ठीक है। तो इसके बाद सप्लायर, कौन सप्लाई करेगा हमारा प्रोडक्ट। हम खुद तो नहीं जाएंगे ना, प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हर जगह हम सप्लाई करने तो नहीं जा रहे, या फिर हमने कोरियर के थ्रू भेजने वाले हैं या फिर कैसे। देन मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से होंगे हमारे, हमारे कस्टमर्स कौन से होंगे, ये भी हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन हमारे कंपटीटर्स कौन है और पब्लिक इसमें कैसे रेट करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोटोस्टेट मशीन बनाई, उसको आप घर में तो नहीं बेचने जाओगे ना,
आप ऑफिस में ही दोगे, या फिर किसी ने अगर फोटोस्टेट की शॉप खोलनी है तो उसको आप एंटरप्रेन्योर को ऑफर करोगे। तो ये क्या है हमारी मार्केटिंग। हमारे कस्टमर्स कौन से हैं, तो हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनीज की फोटोस्टेट मशीन मार्केट में अवेलेबल है, तो उनके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे और हमारे फीचर्स उसमें कहाँ बेटर हैं और क्या और कौन सी चीज़ हमारे वाले में अच्छी है उसको बताएंगे। सिमिलरली आप टीवी का बनाने जा रहे हो, टीवी के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हो, तो वहां पे आप स्टडी करोगे कि एलईडी टीवी करने वाले हो या फिर एलसीडी। ठीक है, और आपके कस्टमर्स के कौन कौन से होंगे, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, मार्केट इंटरमीडिएटरीज यानी कि आपके एजेंट्स या फिर ब्रोकर, आपके वो डीलर्स कौन से हैं, देन हमारे कस्टमर्स कौन से होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टीवी आपके कस्टमर्स भी उसी तरह से होंगे। आप एक होम थिएटर एक छोटी सी हट में या तो नहीं लगा सकते ना, एक होम थिएटर सिस्टम के लिए आपको घर या रूम भी बड़ा ही चाहिए होगा। तो आपको कस्टमर्स कौन से हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्केट में स्टडी करोगे कि कौन से एरिया में ये कस्टमर्स उसकी पॉकेट उसका बजट है भी है, अलाउ कर रहा है उसको ये खरीदने के लिए, तो ये सब उसको अकॉर्डिंगली आप उसको सब ऑफर करोगे। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ये हमने ऑलरेडी 4 पीस डिस्कस कर लिए। उसके बाद आते हैं कंपटीशन क्या है, हमारे इकोनॉमिक जीडीपी उसका उस स्टेट की कैसी है, हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज या ट्रेंड्स हैं भी है, एक्सेप्ट भी करते हैं चेंजेस को। फॉर एग्जांपल अगर हम अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की देख लें एग्जांपल, तो वहाँ पर टीवी या रेडियो तो अलाउ ही नहीं करते देखना, फीमेल्स को तो स्टडी करना अलाउ ही नहीं करते, तो वहां पर तो हम अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकेंगे ना, टीवी वगैरह। तो वहां पर नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कितनी है, तो उसमें क्या क्या आपको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है। देन सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट वहां पर वैल्यूज एटीट्यूड या ट्रेंड्स के ऊपर है भी है कि एक्सेप्टेंस की नहीं। तो यहाँ पे ये सब हम स्टडी करने के बाद ही अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं। ठीक है, तो उसी एरिया में हम अकॉर्डिंगली मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। दीज आर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उस शहर की या उस देश की टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पेंडेमिक में देखा होगा कि बहुत से गाँव में जो सिग्नल्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे वहां पर। अपना डाटा आप अपना ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते थे, तो उनको बहुत जगह पेड़ पे चढ़ के जाना पड़ता था और पेड़ों पे चढ़ के अपना स्टडी करना पड़ता था। तो आप वहां पर देख लीजिए डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक में आ जाता है हमारा एज, कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा रहते हैं, कौन सा मेल और फीमेल कितने हैं, ये सब वहाँ पे स्टडी हो जाता है। ठीक है, देन नेचुरल इन्वायरमेंट वहां पर कैसे है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है या बारिश है, कौन सा एरिया है। देन लीगल इन्वायरमेंट, उस देश का या फिर उस शहर का लीगल इन्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल अभी आपने टूल किट के ऊपर देखा होगा, हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था मीडिया में भी, और एक वहां पे एनजीओ के थ्रू एक टूल किट लॉन्च की थी, तो उस लेडी को ही उन्होंने अंडर अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये क्या है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पर आपको बोलने की आजादी है कि नहीं है। देन इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ दैट कंट्री, हाउ इज इट डीलिंग विद ऑल दीज इश्यूज। देन पॉलिटिक, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी रही कि नहीं है। देन कम्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कौन से प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो, तो वहां पे पॉलिटिक्स कितनी चल रही है, वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देन सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में आ जाता है कि वहाँ पे कौन सा कस्टम चल रहा है। ठीक है, आप अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ डाइवर्सिटी है, बाकी सेक्युलरिज्म भी है और डाइवर्सिटी भी है। बाकी अगर आप अरेबियन कंट्रीज में चले जाओ या फिर आप मुस्लिम कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पर अलग रहेगा सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। अगर आप ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ तो वहां पर आपको अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये क्या है हमारा एनवायरनमेंट विच इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
it is a small thing. It is all the repetition of all these things. यहाँ पर हमारी strengths क्या है, अपने client आ गया, 4 P's आ गए, उसके बाद हमारे 4 P's के साथ आ जाते हैं हमारे process management, physical facilities, personal power and public relations also. जिसके बाद आ जाते हैं हमारा demographics, demographic environment, technological environment, competitive strength and weakness, social cultural environment, political environment, and economic environment. These are going to have an impact on the marketing of any product. Then comes our marketing strategy. I hope you are clear with all these things till now. And you can write the all the okay, you can answer all the questions till now. Now comes our मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कोई भी आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, सबसे पहला उसमें पॉइंट क्या रहेगा, प्लानिंग. प्लानिंग के बाद आ जाता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट आपकी जो है वो कौन इसमें डिसीजन लेगा. देन ऑफलाइन इंटीग्रेशन क्या रहेगी इसमें. देन ट्रैफिक बिल्डिंग कैसे होगी. देन सोशल मीडिया कौन सा यूज होगा, कौन सा यूज होगा भी कि नहीं होगा. देन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, इसमें इनोवेशन होगी कि नहीं होगी, आप इसमें न्यू आइडियाज को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे. ठीक है. Then conversion analysis and website designing. This is all involved in the marketing strategy of any product. Various tasks a marketing manager is supposed to perform in the competitive business scenario are developing marketing strategies and plans, capturing market insights, connecting with customers, building strong brands, shaping the market offerings, delivering value, communicating value and creating long term growth. डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें सारे की सारी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, स्ट्रेटेजीज एक बार नहीं बनती हैं या हर रोज चेंज होती हैं. आपकी जो मेन प्लान है उसके ऊपर हम काम करते रहते हैं, और डिफरेंट प्लानिंग इसमें हर रोज होगी, हर मिनट होगी, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर होगी. आप ये मत सोचना कभी भी कि मार्केटिंग मैनेजर ने एक बार प्लान बना लिया और वो उसी को फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. एवरी मिनट और एवरी सेकेंड एवरी डे यू हैव टू चेंज योर प्लान्स. दीज आर यू हैव टू डू अ प्लानिंग. ठीक है. देन कम मार्केटिंग इनसाइट्स. आपके हर कस्टमर अलग है, हर आप जिस जिस तरह से आप देखोगे आपके हैंड में 5 फिंगर्स हैं, तो इंक्लूडिंग वन थंब, they are not equal in size, they are different in different hands. अगर आप अपने ब्रदर के, सिस्टर के या किसी और का भी हैंड देखो, फ्रेंड का भी हैंड देखोगे, तो उसकी फिंगर्स का साइज वेरी करेगा. तो यहाँ पर भी इनसाइट्स अलग रहेंगी, मार्केटिंग इनसाइट्स कभी भी सेम नहीं होगी. कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स के साथ हमेशा कनेक्शन बना के रखना है. आप ये मत सोचिएगा आपने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो आपका कस्टमर आपका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. उसको भी डिफरेंट एरिया से फीडबैक मिलती है, उसको अपग्रेडेशन होती रहती है. तो आप ये मत कभी भी सोचना कि आपने जंग जीत ली. जंग कोई नहीं जीत पाता है इसमें, आपको कस्टमर को रिटेन करना होता है. ठीक है. बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, अपने ब्रांड के बारे में कस्टमर्स को हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि हाँ, हम आपने जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है वो बेस्ट है. शेपिंग द मार्केट ऑफरिंग्स, मार्केट में डिफरेंट ऑफर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अलाउंसेस, डिस्काउंट्स, या फिर अपना कमीशन ऑफर कर देते हैं कई बारी. तो ये क्या है, यहाँ पर अपना कस्टमर को विन करने के लिए. तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो डिफरेंट, या फिर उसको गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं. तो ये क्या है कि जो मार्केट में ट्रेंड है, मार्केटिंग मैनेजर को भी वो ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. डिलीवरिंग वैल्यू ऑफ आफ्टर सेल्स, आपको उसको सर्विस भी देनी पड़ती है. कम्युनिकेटिंग वैल्यू टू द कस्टमर, आपको उसको बताना पड़ता है कि ये वाले बेनिफिट्स भी आपके प्रोडक्ट के साथ आपको मिले हैं, दैट इज आफ्टर सेल्स सर्विस भी मिल रही है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गारंटी वारंटी वाले ऑफर्स भी हैं. अगर आपको रिप्लेसमेंट करवानी है तो भी आपके पास ऑफर है. तो ये क्या है, आप उसको एक वैल्यू बता रहे हो कि आपके प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट हमसे खरीदा है कि वो वैल्यू भी आपको साथ में मिलेगी. क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर आप कस्टमर को एक बार सेटिस्फाई कर लेते हो, तो आपने देखा होगा बहुत से घरों में अगर फ्रिज
सैमसंग का है तो टीवी भी सैमसंग का ही होगा, और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी सैमसंग के ही होंगे। रीजन क्या है, आपने एक बार ही प्रोडक्ट कस्टमर को विन कर लिया तो आपकी उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कार्स कार्स अगर एक बार ही मारुति 800 या मारुति ऑल्टो जब किसी से की सर्विस से बंदा खुश है, तो ही विल नेक्स्ट परचेज नेक्स्ट कार ऑफ स्विफ्ट स्विफ्ट और एनी अदर बिग लग्जरी कार, वो भी अपनी मारुति ही की ही प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू हिंडे और होंडा सिटी। ठीक है, तो ये क्या है, मोर ओवर मैनी अदर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, बट वो क्या है, उसकी एक ब्रांड के साथ अफिनिटी बन जाती है कि मुझे इसी ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ मुझे कंफर्टेबल है, कि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो ये क्या हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है एक कस्टमर के साथ। देन स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्कोप क्या है। अभी तक तो आपने देखा कि मार्केटिंग 4 पीस क्या होते हैं, और हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट में। मार्केटिंग का स्कोप है, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स, स्टडीज कस्टमर डिमांड्स या कस्टमर की नीड क्या है वो स्टडी करता है, प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करता है कि अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनाना है उसमें किस क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो हम दे रहे थे उसके अलावा हमें और क्या सर्विसेज देनी है, और प्राइसिंग टेक्निक्स हमने क्या, प्राइसिंग पॉलिसीज हमने कैसी कैसी रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, सेलिंग किस तरह से करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसे इंप्रूव करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, और फीडबैक भी कलेक्ट करनी है। ठीक है, ये हमारे स्कोप है मार्केटिंग का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मार्केटिंग फंक्शन करती है मार्केट के एनालिसिस से। इट फंक्शंस विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल्स सपोर्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। I hope all of you are clear with all these marketing concepts, and I will continue with the next chapter in the next video, and will update you accordingly. In case you have any doubts, you can write down in the comment box.